کہہ رہے ہیں دوسری شادی کے لیے اہلیہ کو تیار کرنے کا آسان نسخہ بتا دیں. اہلیہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگی, اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ تیار نہ ہو. یہ پاگل پنے والی بات ہے کہ تمہاری بیوی کہے کہ آپ ایک اور شادی کر لو. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کرتے تھے امی عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی, غیرت آتی تھی ان کو. تو عورت کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دو, آپ کا جو کام ہے وہ آپ. یہ ایسا ہی ہے جیسے مفتی صاحب قربانی کے بکرے کو آپ سمجھائیں کہ خود ہی لیٹ جائے قربانی والے دن آ کے. بکرا کا یہی ہے کہ وہ نہیں لیٹے, سمجھ رہے ہو. بکرے پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے, بیل پر لازم ہے رسہ توڑ کے بھاگے گا. یہ اس کی عقل صحیح ہونے کی علامت. اگر وہ آ کے لیٹ جائے گا تو اس کا مطلب اس کی کھوپڑی ٹھیک کام نہیں کرتی. تو بھائی جو عورت کا کام ہے وہ عورت کو کرنے دو. عورت کا کام ہے, متنبی کا شعر علی احبتی ان یملؤ بالصافیات الاقوبا وعلیہنی ان یبذلوا وعلی اللہ اشربا. کیا خاندانی شعر متنبی کہہ گیا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے, اس کے بہت سارے دوست تھے, شراب پیتے تھے. یہ 1000 سال پرانا قصہ ہے. وہ شرابی دوست تھے نا, تو یہ کبھی کبھار شراب خانے میں ان سے ملنے کے لیے جاتا. متنبی کو شراب سے نفرت تھی. وہ کہتا تھا یہ غیر اخلاقی چیز ہے, ٹھیک ہے. متنبی کہتا تھا مرد کی مردانگی یہ نہیں ہے کہ شراب پیے, مرد کی مردانگی ہے تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر دشمن سے لڑے. گھمسان کی جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانا یہ مردانگی ہے, پی کے ٹن ہونا یہ مردانگی نہیں ہے. یہ اس کا اسٹائل تھا متنبی کا. متنبی سے کسی نے پوچھا تمہیں جانتا کون ہے, اس نے کہا مجھے تلوار جانتی ہے کہ میں کون ہوں, کیونکہ میری سلام دعا اکثر کس کے ساتھ ہوتی ہے, تلوار کے ساتھ. ابے یار تمہیں ہر بات میں نا سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے. دیکھو کوئی رشتے والے آتے ہیں, لڑکے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لڑکا کون ہے, تو آپ کہتے ہو فلاں آدمی اکثر اس لڑکے کے ساتھ نظر آتا ہے, وہ زیادہ جانتا ہوگا اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے, کیونکہ جو آپ کے پاس زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو متنبی شاعر تھا, وہ ہر بات کو شاعری انداز میں کہتا. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے نالج ہوگی کہ جو ہمیں بتائے کہ آپ کون ہیں. متنبی نے فوراً شعر پڑھ دیا, مجھے تلوار جانتی ہے کہ میں کون ہوں, مجھے کتاب جانتی ہے کہ میں کون ہوں, اور اگر میرے بارے میں آپ کو نالج چاہیے تو گھوڑے سے پوچھو, وہ پوری معلومات میرے بارے میں آپ کو پرووائڈ کرے گا. کیونکہ میرا واسطہ 3 چیزوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, یا تو میں مصنف ہوں, کتاب پڑھتا ہوں اور ہر وقت کتابوں میں مشغول رہتا ہوں, یا میں گھوڑے کی پشت پہ آپ کو نظر آؤں گا, اور یا میرے ہاتھ میں کیا ہوگی, بولو. یہ پہلے زمانے کے نوجوانوں کے فخر کرنے کے اسٹائل ہوا کرتے تھے. آج نوجوان پتہ کس چیز پہ اسٹائل مار رہا ہے, آئے گا یوں کر کے نا واک کرتا ہوا, ایک چیز شیروانی پہنی ہوگی اور بیوٹی پارلر سے باقاعدہ رگڑے لگا کے آیا ہوگا منہ پہ, اور میک اپ کروا کے آیا ہوگا, اور پورا مخنث ہجڑا بن کے آیا ہوگا, اور پھر ٹک ٹاک پہ کہے گا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں, بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. ابے تو آدمی ہے, تو لپسٹک پاؤڈر کیوں لگا رہا ہے, اس پہ فخر کیوں کر رہا ہے تو. پھر دلہن مرد تیار کر کے فخر کر رہے ہیں کہ میں نے کیسی دلہن تیار کی ہے. تو متنبی نے ان سب کو بتایا کہ بھائی کسی مرد کے بارے میں پوچھنا ہو نا کہ کون کیسا ہے, تو متنبی نے کہا میرے بارے میں پوچھو گے تو دلہنوں سے نہیں پوچھو, میں بیوٹی پارلر میرا دلہنیں تیار کرنے کا نہیں ہے. میرے بارے میں پوچھو گے بیوٹی پارلر والا نہیں بتائے گا بڑا خوبصورت چہرہ اس کا, یہ چیزیں عورتوں پہ سوٹ کرتی ہیں, آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی. متنبی سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں, تیرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے. اس کا خیال تھا متنبی کہے گا بھائی وسیم بھائی سے جا کے پوچھ لو, زیادہ تر میں کٹر کے ڈھکن پہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تاش اسی کے ساتھ کھیلتا ہوں. ہم تو یہی جواب دیتے ہیں نا. بھائی مجھ سے آپ پوچھیں مفتی صاحب آپ کو کون زیادہ جانتا ہے, میں اپنے بچپن کے دوستوں کا بتا دوں گا, یار دیکھو 8ویں کلاس سے ہم اکٹھے ہیں, 9ویں کلاس سے ہم اکٹھے ہیں, دیکھو ہم تفریح پہ بھی اکٹھے جاتے تھے, پڑوس میں بھی رہتے تھے, یہی بتاؤں گا نا میں. متنبی سے بالکل یہی سوال پوچھا گیا. مجھے یہ واقعہ بتانے میں مزہ بہت آ رہا ہے, اس لیے میں مزے لے کے سنا رہا ہوں. متنبی سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے بارے میں رپورٹ کس سے پوچھیں, وسیم بھائی کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے یا کلیم بھائی کے ساتھ تو شاپنگ کرنے جاتا ہے, تیری لانگ ٹریولنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے, جب تو بغداد فتح کرنے بغداد گیا تھا تو تیرے ساتھ کون تھا, ہم اس سے پوچھیں گے تیرے بارے میں. تو ذرا بتا یار تجھے کون جانتا ہے. کیا شعر پڑھا متنبی نے یار. متنبی نے کہا میرے بارے میں پوچھنا ہے 3 چیزیں ہیں جو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں. اعز مقام فی الدنا سرج سابح, کہتا ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت یہ مرد کے لیے سب سے اونچا مقام ہے. اس سے اچھا مرد کسی پوزیشن میں بولو نہیں لگتا, دولہا بنا ہوا بھی نہیں لگتا, صحیح ہے نا. مرد سب سے اچھا کہاں لگتا ہے, جب تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہو. یہ مقام مرد کے لیے سب سے کیا ہے, اچھا. اور سب سے بہترین دوست آپ کسی سے پوچھ لے تو کہ خوبصورت سی گرل فرینڈ ہو اور ایسے کوہنیوں باہوں میں باہیں ڈال کے قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کی نیت سے ٹوپی کرا کے گئے ہوئے ہوں. سب سے بہترین مقام یہی ہے نا, لوگ یہی کہیں گے نا سب سے بہترین ہم نشیں. جلیس کہتے ہیں ہم نشیں کو. ہم نشیں پتہ کسے کہتے ہیں, جو اکثر آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو متنبی سے پوچھا بھائی سب سے بہتر ہم نشیں کون سا ہے. آج کے نوجوان سے پوچھا جاتا, وہ کہتا فلانی ڈمکانی کچھ بھی نام لے لیتا. اور سب سے اونچا مقام کون سا ہے, بہترین مقام مرد پہ کون سا ہے, وہ کہتا ہے بیوٹی پارلر پہ تیار ہوتے ہوئے جب اس کی تھریڈنگ ہو رہی ہو اور گھسائی ہو رہی ہو, سب سے بہترین مرد کے لیے. متنبی کیونکہ فطرت پر تھا, مسلمان تھا, ایسے کلچر میں پیدا ہوا جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی. ہماری فوجیں یورپ کو فتح کرنے نکلی ہوئی تھیں, سمجھتے ہو, ٹک ٹاک ایجاد نہیں ہوا تھا. اس لیے متنبی نے کیا خاندانی جواب دیا. اتنا لمبا تو متنبی نے جواب نہیں دیا جتنا اس جواب کو ایکسپلین کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے.
मुतनब्बी ने कहा अहब्बु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन, तैरते हुए घोड़े की पुश्त मर्द के लिए सबसे इज्जत वाला मकाम, जहां मर्द को सल्यूट करने को दिल चाहता है, इज्जत वाला मकाम। व खैरु जलीसिन फिज ज़मानी किताबु, और जमाने में सबसे खूबसूरत हमनशीन किताब है। मर्द के हाथ में किताब बहुत, बोलो, अच्छी लगती है। बैठा हुआ है और क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, चश्मा लगा हुआ हो और मुताले में मशगूल। आज क्या हो रहा है? टिकटॉक पे डांस में मशगूल। यूरोप में हमने देखा ट्रेनों में लोग किताब लेके बैठे हुए होते हैं, हमारी सोसाइटी में किताब मार्केट से शॉर्ट। अच्छा खैर आगे चलते हैं। और फिर मुतनब्बी से पूछा आपके बारे में रिपोर्ट लेनी हो तो किससे ले? हम सबसे ज्यादा उठना बैठना आपके का किससे साथ? सलीम भाई के साथ आप गटर के ढक्कन पे बैठते हैं या वसीम भाई के साथ? तो मुतनब्बी ने इसका बड़ा खानदानी जवाब दिया। उसने कहा मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ना सलीम भाई के पास जाने की जरूरत है आपको, और ना वसीम भाई के पास, ना सुबुक्तगीन के पास, और ना जमशेद से मेरे बारे में पता चलेगा। मेरा असल में उठना बैठना 3 चीजों के साथ ज्यादा है। मेरा उठना बैठना किनके साथ ज्यादा है? घोड़ा, किताब, तलवार। मेरी जिंदगी किसमें गुजरी है? घोड़े की पुश्त पे, हाथ में तलवार, और जब फारिग बैठा हूं तो हाथ में क्या? किताब। तो जितना अच्छा मुझे किताब एक्सप्लेन कर सकती है, तलवार को मेरे बारे में रिपोर्ट पता है, घोड़े को मेरे बारे में, मेरे घोड़े से जाके पूछोगे वो बता देगा, तलवार से पूछोगे बता देगा। आप कह सकते हो कि यार मुतनब्बी तेरा दिमाग खराब है, तलवार कैसे बताएगी? तलवार की क्या जबान होती है? असल में वो ये कहना चाह रहे हैं तलवार पे मेरे कारनामे नक्श हो चुके हैं। जब तलवार से जाके पूछोगे ना मैं क्या हूं, तो फिर तलवार तुम्हें रिपोर्ट पेश करेगी, फला मौके पे इस तलवार से मैंने इतनी बहादुरी दिखाई, और कैसे मैंने इलाकों को फतह किया, कैसे अपने दुश्मनों को मैंने बहादुरी में जेर किया, कैसे मैंने मजलूमों की मदद की। घोड़ा रिपोर्ट पेश करेगा कि इस घोड़े की पुश्त पे सवार होकर मैंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो मेरे दोस्त मेरे कारनामों का नहीं बताएंगे, घोड़ा और तलवार बज़बान हाल। और कहते हैं आज जो मेरे पास नॉलेज है जिससे मैं लोगों को गाइड करता हूं, ये नॉलेज मुझे कहां से मिली है? किताब से। किताब बताएगी, मेरी जो मैंने किताबें पढ़ी है वो बताएंगी कि मेरे पास नॉलेज कितनी है। जिसके पास नॉलेज होती है वो लोगों को गाइड कर सकता है। समझते नहीं हो क्या हो गया? ये शेर मैंने शुरू कहां से किया? हम तो शेर में ही बह गए। ये लाया किस सिलसिले में था मैं मुतनब्बी का शेर? अबे नहीं यार, है? हाँ तो वो शेर सुना रहा था मुतनब्बी का आपको। तो फलम्मा अनखना रकज़ना रिमाह बैना मकारिमिना वल उला लितअलम मिस्र व मन बिल इराक व मन बिल अवासिम अन्नी अल फता व अन्नी अबैतु व अन्नी वफैतु व अन्नी अतौतु अला मन अता। क्या शेर है यार। मुतनब्बी कहता है हम जब चले ना तलवारें लेके तो हमने मुकाबले किए, दुश्मनों की खोपड़ियां उड़ाई, बहादुरी के जौहर दिखाए। रात को जब हमने स्टे किया और तलवारों को जो हमने जमीन पे गाड़ा तो असल में वो जमीन पे नहीं गाड़ा था, वो इस बात पे मैंने स्टैंप लगाई थी, मोहर लगाई थी कि मैं एक जवान आदमी हूं और मैं दुश्मन की बात नहीं मानता। और जो मुझ पे सरकशी करता है तो सरकशी के जवाब में मेरा रिस्पॉन्स भी कौन सा होता है? बुज़दिली का नहीं होता बल्कि सरकशी का होता है, ताकि ये बात मिस्र वालों को भी पता चल जाए, अवासिम वालों को भी, इराक वालों को भी। ये बताने के लिए अपनी तलवार को मैंने जमीन पे गाड़ा, तो असल में इस मजमून पे मैंने मोहर लगाई है, ये तलवार जमीन पे नहीं गाड़ी है। आप लोग को मजा नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये शेर पढ़ने में। आगे चलते हैं। आ रहा है नहीं यार, अभी मैं किससे शेर दूं ना, ब्यूटी पार्लर के। वो बंदा दूल्हा तैयार होके आया था, खुदा की कसम तारिक रोड पे ऐसा ब्यूटी पार्लर है, बंदे को पता ही नहीं चलता कि आदमी है कि ये क्या है। ही और शी का फर्क क्या कर दिया उस ब्यूटी पार्लर ने, खत्म। हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे यार हमें भी नंबर बता दो जरा उसका। तो नौजवान का आजकल स्टाइल ये होता जा रहा है, इसलिए मैं इनको शेर पढ़ा के ना थोड़ा आदमी बना रहा हूं। मैं 4 शादियों का भी इसीलिए कायल हूं कि तुम्हें ही लगो, तुम देखने में पूरे क्या लगो, ही। दुनिया में ही और शी का फर्क क्या हो रहा है, खत्म। अच्छा खैर वो शेर को मुकम्मल कर दो। तो मुतनब्बी ने ये बीवी की शादी की वाली बात पर शेर सुना रहा हूँ कि इन्होंने कहा था वाइफ शादी की इजाजत नहीं दे रही दूसरी शादी की। तो उसमें मैं कह रहा हूँ वाइफ का काम है मना करना, आपका काम है मना ना होना, उसका काम उसको करने दो। तो इस पे मैं शेर सुना रहा हूँ कि मुतनब्बी बड़ा बहादुर था। वो कहता था मुझे तलवारों की छांव में मजा आता है, ये मर्दानगी, शराब पी के इधर उधर झूमना ये मर्दों का काम नहीं, ये तो शहवत परस्तों का काम है ना। तो इसलिए मुतनब्बी ने कहा शराब खाने में गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो दोस्त पी भी रहे थे और मुतनब्बी को पिलाने की कोशिश भी कर रहे थे कि काइंडली 2 घूंट हमारी तरफ से दादी के इसाले सवाब के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, यानी पी ऐसे ही लोग रहे होते हैं जैसे कोई सवाब मिल रहा है, तो 2 घूंट हमारी तरफ से भी हो जाए। मुतनब्बी ने ऐसे मौके पे ये शेर पढ़ा, ली अहिब्बती अन यबज़ुलू, कि मेरे दोस्तों पे यही चीज सूट करती है कि मुझे पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो मुझे पिलाने की कोशिश ना करें इसका मतलब वो मेरे दोस्त नहीं है। जिस चीज में उनको मजा आ रहा है तो दोस्त चाहता है कि इस मजे में मेरे साथ मेरा दोस्त शरीक हो। तो उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अगर तुम मुझसे शराब का ना पूछते इसका मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ली अहिब्बती अन यबज़ुलू, कि मेरे दोस्तों पे यही चीज सूट करती है कि मुझे पिलाने की कोशिश करें। वालैया अल्लाह शराबा, मुझ पे जो चीज सूट करती है वो ये कि मैं ना पीऊं। नहीं आई बात। ली अहिब्बती अन यबज़ुलू वालैया अल्लाह अशरबा, उन पर लाजिम है कि पिलाएं, उनकी दोस्ती का तकाजा है और मेरी बहादुरी का तकाजा है कि मैं ना पीऊं, क्योंकि मुझे जंगों में नशा आता है शराब का, मुझे बोतलों में नशा नहीं आता, मेरा नशा किसी और चीज में।
तो मैं कहता हूं बेगम पर लाजिम है कि शौहर को दूसरी शादी से रोके, उसकी मोहब्बत का तकाजा है, आपकी मर्दानगी का तकाजा है, आप ना रुकें। आप बोलें बेगम तुम इतनी अच्छी हो, मैं चाहता हूं ऐसी अच्छियां और भी आ जाएं। तुमसे शादी के बाद मुझे पता चला कितनी बड़ी नेमत है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब मैं कंवारा था मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी बड़ी नेमत है, तुम मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई। आज मुझे पता चला कि मोहब्बत और खुशियां क्या होती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी 3 खुशियां और ले आऊं। समझते हो? वो गुस्सा करेगी, रोएगी, तो आप मुतनब्बी का ये शेर पढ़ लिया करो, ली अहिब्बती यबदुलू व अलैया अल्लाह अशरबा। बेगम तुम पे यही सूट करता है, क्योंकि तुम्हारी जो मुझसे मोहब्बत है, औरत मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा यही है। जितनी मोहब्बत है, मुझे पता है कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, समझ में आ रही बात? तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन हमारी मर्दानगी कैसे है भाई? दूसरी इसलिए कि बेगम, अगर मर्द के लिए एक बीवी काफी है और बीवी के लिए तो एक मर्द काफी है, तो फिर इसका मतलब इस रिलेशन में ताकत और कुव्वत के लिहाज से मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम में फिर आदमी किस बात का हुआ? नहीं है मेरा ख्याल है भाई। मर्द के लिए अगर एक औरत काफी है और एक औरत के लिए भी एक मर्द काफी है, तो इसका मतलब जितनी डिजायर्स, जितनी ताकत औरत में है उतनी ही ताकत मर्द में है। तो फिर आदमी किस बात के हुए आप? नहीं है बात। मर्द का मतलब इसमें ताकत औरत से, ये डिजायर्स औरत से ज्यादा, उसमें डिजायर्स औरत से ज्यादा है। इसलिए गुलाम को भी अल्लाह ने 2 शादियों की इजाजत दी है। जो आजकल गुलाम मार्केट से शॉर्ट हुए में, गुलाम को भी इजाजत दी है। तो उसका काम है भाई, उस पर गुस्सा मत करो। आपका काम क्या है? जो आपको अल्लाह ने अथॉरिटी दी है। हाँ, औरत को ये चाहिए इतना रिएक्शन ना करे कि कुफर तक पहुंच जाए। बाज़ इस्लाम को ऊपर वाला कहना शुरू कर देती है, और एक इतदाल, एक हद, एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज एक लिमिट में बर्दाश्त होती है। तो औरत को मैं कभी भी नहीं कहता अपने मियाओं की दूसरी शादी कराएं, ये अच्छा नहीं है। औरत को तकलीफ होती है, ये नेचुरल है। उसकी तकलीफ क्या है? नेचुरल है। आपको अल्लाह ने इजाजत दी है भाई, ठीक है, आप कर सकते हो तो करके बता दो, नहीं है तो नहीं करो। हिम्मत तो अब आप में कितनी हिम्मत है। और औरत अगर खुद कहते ना आप कर लो, तो फिर मर्द निभाता भी नहीं है, क्योंकि जब मुश्किल चीज प्लेट में रख के मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। आप जब लड़ झगड़ के टेंशनें बर्दाश्त करके करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई सोसाइटी में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, और इसको निभाना कितना मुश्किल। तो हौसला पैदा होगा, फिर निभा भी लोगे। क्योंकि जिन लोगों की बीवियों ने कराई ना, एक्चुअली आप एक और शादी करें, वो किसी काम के नहीं बेचारे, क्योंकि उन्होंने कोई मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं था। जब मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं था तो वो फिर नहीं चला पाए, वो बर्बाद हो गए। पहली को भी बर्बाद कर दिया, दूसरी को भी बर्बाद कर दिया। तो इसलिए लड़ के जो काम होता है, वो लड़ाई के दौरान ही पता चल जाएगा आप में तप्पड़ कितना है। समझ रहे हो? लड़ाई के दौरान ही पता चल जाएगा। धमकियां झील गए तो आगे चला लोगे, अगर धमकियों से डर गए इसका मतलब तुम्हारे अंदर दम नहीं है। तो तुम वो काम क्यों कर रहे हो जो तुम आगे तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है उसे चलाने। तो ये बच्चों का काम नहीं है, ये आदमियों का काम है। तो आदमियों पे ही सूट करता है जो ये सारे झगड़ों को झेल के बर्दाश्त करके चला सकें, क्योंकि जब 2 होंगी ना तो मसाइल कम नहीं होंगे, मसाइल क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। फिर कैसे चलाएगा? फिर तो कहेगा बेगम अब तुमने मुझे इजाजत दी थी ना, अब तुम इससे मत झगड़ो। दूसरी को कहेगा तुम पहली वाली से मत झगड़ो और मैं भी तुम दोनों से नहीं झगड़ूंगा। तो मान लेगी क्या वो? तो आपकी खोपड़ियां आउट होना शुरू होंगी। वो कुछ और कह रही होगी, ये कुछ और कह रही होगी। तो फिर आप जब इधर जाओगे उधर जाओगे, फिर आप पागल होना शुरू। तो अगर हौसला होगा तो चला लोगे ऐसी की तैसी, हौसला नहीं होगा तो खुदकुशी करोगे उल्टे लटक के। इसलिए हम कहते हैं दूसरी शादी फड्डों के बाद हो तो ठीक है। सुसर बंदूक लेके घूम रहा हो कि तू नहीं करेगा, साले बोले तेरी टांगे तोड़ देंगे हम, बीवी बोले ऐसी की तैसी, उसके बाद फिर भी कर ली ना, तुम्हारे अंदर हौसला है। समझ रहे हो? तो ये सारा प्रोसेस जरूरी है। इस प्रोसेस से गुजर के करो तो ठीक है। और हम गुजरे हैं, खाली हवाई बातें नहीं कर रहे। हम जब गुजरे हैं तो हमारे जो हालत है वो अभी मैं ही कर रहा हूं आपके सामने, जो उस वक्त थी ना, उस वक्त तो अजीब ही हालत थी। हाँ हजरत, बहुत ऐसा नहीं होता कि आपने सारे गले मिल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उस वक्त जो हमारी हालत थी वो मोस्ट वांटेड था, मैं मोस्ट वांटेड। तो इसलिए हमने कहा भाई, अब मैं भी एक बात बोलता था, भाई मेरे को मार दो, मेरे कत्ले बना दो, जला दो मेरी लाश को, मैं नहीं छोड़ूंगा। जो करना है ना दूसरी की वजह से पहली को, ना पहली की वजह से दूसरी को, रहना है इसी तरह रहो, वरना ऐसी की, और दोनों के हुकूक भी दूंगा। लोग क्या कर रहे होते हैं, दूसरी शादी की बीवी ने जब धमकाया तो दूसरी के पास जाना छोड़ दिया, उसकी बारियां माफ कराओ भाई, बारियां माफ, ऐसी की तैसी भाई, जब की है तो की है, जाओ। एक रात इधर गुजरेगी, दूसरी रात उधर गुजरेगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसका भी वही हक है जो पहली का है, और पहली का भी वही हक है जो दूसरी का है। तो फिर ये होता है कि ठीक है कर तो ली, अब आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है, फिर छुप छुप के जा रहे हो, भाई बारी है जा रहा हूं, बारी है, जो करना है कर लो। तो इस स्टाइल में जब टेंशनों के बाद काम होगा तो फिर ये स्टाइल होगा। शुरू से लड्डू पहली होती है तमीज से मेरे भाई, दूसरी नहीं होती, समझते हो? दूसरी नहीं होती, दूसरी ऐसे ही होती है जैसी करना है तो इसी तरह से करो। और मुझसे ये उम्मीद न रखो कि मैं आपकी बीवियों को जाके समझाऊंगा कि काइंडली अपने शौहर की दूसरी शादी करा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने करना है खुद ही करे, वो बीवी को कोई नहीं समझा सकता, और बीवी को चाहिए समझे भी नहीं। बीवी बोले तेरे में दम है तो कर लेना, सही है ना, मुझे आगे क्यों टॉर्चर कर रहा है? ये दम की बात होती है।
फिर जब आप करोगे तो बीवी धमकियां देगी, मैं जा रही हूं, आप मनाने की कोशिश करो, फिर भी जा रही है तो काइंडली फिर से चीज ले जाए, क्या करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं मनाने की। तलाकें देने में जल्दी नहीं किया करो, 1 साल रहेगी, 1.5 साल रहेगी, फिर आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर जो समझ में आ रहा है आपस में मिल बैठ के कर लो। तो ऐसा ही होता है, इसी सिलसिले में आप बोलोगे ये इस तरह से होता है काम। और फिर वो मुतनब्बी का शेर पढ़ लिया करो कि मुझे तलवार जानती है मुझे घोड़ा जानता है। इससे हौसला मिलेगा आपको। मुझे कितना हौसला मिल रहा है देखो ये शेर पढ़ के। बाज़ है नमाज़ ऊपर काबा का नक्श बना होता है तो इसके ऊपर बैठना चलना। और याद रखो 2-3 शादियों के बाद ना सियासत के बगैर ये रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। इनमें बहुत दफा आर्टिफिशियल गुस्सा करना पड़ता है, बहुत दफा आपको हो सकता है रोना भी पड़े, हालांकि रोना ना आ रहा हो। रिश्ते सियासत से निभाए जाते हैं, सच से कभी भी नहीं निभाए जाते। कि आप बिल्कुल सच सच लेके एकदम परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे हो, ऐसा नहीं होता। टोपियों का पूरा एक बिजनेस खोलना पड़ेगा आपको। कभी किसी को टोपी करानी पड़ेगी, कभी किसी को टोपी, कभी किसी को टोपी। धोखा देने के लिए टोपी नहीं है। कभी घुमा रहे हो बात को, कभी यूं कर रहे हो, कभी यूं कर रहे हो। कभी बेगम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, फिर भी उसकी तारीफों के पोल बांधने पड़ेंगे आपको। जब एक बीवी होती है ना, आप उसको बुरा भला भी कह दो, कुछ नहीं होता, उसको पता है मेरा ही शौहर है ना, कहां जाए। जब 2 हो गई तो जो गेंडे की तरह है ना, और कहीं से भी हुस्न नहीं है, का अंधेरे में नजर ही नहीं आती, इतनी ब्लैक और गेंडे की तरह मोटी, अल्लाह बचाए, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 6 आदमियों की जगह घेर के चलती है और अंधेरे में नजर ही नहीं आती, दांत से बू आती है। उसको भी आपको कहना पड़ेगा तेरी जैसी हसीना दुनिया में कोई नहीं। आपको खुद लगेगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा कि वो समझे वाकई सच बोल रहा है। लोग अजीब पागल किस्म के लोग हैं, कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तो जो दिल में वही मैंने तो बोल दिया अपनी वाइफ को, देखो तुम पसंद नहीं थी तो मैंने दूसरी शादी कर ली। अबे तूने तो बेड़ा गर्क कर लिया। एक तो तू उसके ऊपर सोकन लेकर आया है, ऊपर से उसके बोल रहा है तू मुझे पसंद नहीं थी, तूने तो ज़बा कर दिया उसको। उसको बोलो तेरे जैसी हसीना दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। तो सुकून मुझे तुझसे इतना मिला है ना कि मैं चाह रहा था ऐसे 3 सुकून, और कुछ भी बोलो वो आपका हेडेक है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि बिल्कुल पागल आदमी लोग हैं, मुझे आके बता रहे होते हैं, मैं कहता हूं भाई तुम नहीं करो दूसरी। मुझे आके बता रहे होते हैं कि मेरी बीवी मान नहीं रही थी ना, वो कह रही थी क्यों कर रहे हो आप दूसरी, क्यों कर रहे हो आप, वो मान नहीं रही थी, तैयार नहीं हो रही थी। तो जब बहुत ज्यादा इसरार की, मैंने उसको बोल दिया देखो मुझे तुम्हारे पसीने से बदबू आती है इसलिए मैं कर। मैंने कहा यार तुम तो बड़ा पागल, मेरे पास क्या आए हो अब। अगर आती भी थी यार, एक बीवी होगी ना, अगर पसीने से बू भी आती है आप उसको बोल दो बू आती है, वो इलाज करा लेगी। दूसरी आपने बोल दिया इसलिए कर रहा हूं, इसका मतलब वो कह रही यार एक तो मेरे ऊपर सोकन, दूसरा उसके पसीने से खुशबू आएगी, जाहिर है। तो मेरा मियां तो हो गया उधर का, मैं तो अब रखेल की तरह रहूंगी घर में। आपने तो उसको जीते जी ज़बा कर दिया ना। तो ऐसा इतना सच बोलने की जरूरत नहीं है, तो खोपड़ा इस्तेमाल किया करो यार। तो उसमें झूठ ही चलता है। उसको भी टोपी, उधर भी टोपी, उधर भी टोपी। वसीना बराबरी तो सबके साथ करनी, हुकूक सबके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई वो आप उसको बोल रहे हो तुम्हारे पसीने से तुम बगलें बड़ी रहती हैं तुम्हारी, और तुम्हारी नाक मुझे बहुत बुरी लगती है। अभी क्या मैं बोलूं यार, छोड़ो।